عمر جلدی سے یہ دیگیں دھو کر لے کر آؤ، وقت گزرتا جا رہا ہے، دیر ہو گئی ہے۔ تم تو جانتے ہو زمیندار کا غصہ، پورا گاؤں اس کے غصے سے کانپتا ہے، وہ ہمیں بہت برا مارے گا اور بری طرح سزائیں دے گا، جلدی سے انہیں دھو کر لے کر آؤ۔ ظفری بابا مجھے تیزی سے ہدایات دے رہے تھے۔ ہم 5 لوگ تھے اور مل کر ہی کام کاج کیا کرتے۔ دراصل ہمارا کام گاؤں میں ہونے والی تقریبات میں کھانا وغیرہ بنانے کا تھا، اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا۔ میں کئی سالوں سے ظفری بابا کے ساتھ کام کاج کر رہا تھا، اسی کام سے میرا گھر چلتا تھا۔ ان کے ساتھ رہ کر میں نے اچھا کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ جن دنوں تقریبات نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں ٹھیلا لگا کر گاؤں کے بس اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر کھانے پینے کی اشیاء بیچا کرتا تھا۔ جو بھی مسافر وہاں آتے وہ مجھ سے ضرور کچھ نہ کچھ خرید لیتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے گزارا چل ہی رہا تھا، لیکن مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ گھر کا خرچہ نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم گھر میں کل 15 افراد تھے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں کماتا۔ پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی وغیرہ سب چھوڑ کر کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ مجھے پڑھائی کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنے اس شوق کو میں نے ایک سائڈ پر رکھا اور کمانے کی غرض سے گھر سے باہر نکل آیا تاکہ چند پیسے کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ یہ سب کرنے میں مجھے شروع میں ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں سب سے کم عمر تھا اور میرے ارد گرد بہت سارے تجربہ کار لوگ تھے جو کئی سالوں سے کام کاج کر رہے تھے۔ جب میں نے بھی یہ کام کرنا شروع کیا تو لوگوں نے میری بہت مخالفت کی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے کاروبار کو خراب کر دوں گا، کیونکہ میں نا تجربہ کار ہوں۔ کوئی بھی مجھے اپنے پاس کام میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے میں ظفری بابا آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور مجھے کام سکھانا شروع کر دیا۔ میں ساری زندگی ان کا احسان مند رہوں گا۔ ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ وہ بہت ہی مہربان دل کے انسان تھے، ہمیشہ رے کی مدد کیا کرتے۔ پیسے اور دولت کا انہیں کوئی لالچ نہیں تھا۔ یہ کام وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کرتے۔ حالانکہ ان کی زمینیں تھیں اور وہ ان پر کھیتی باڑی کر کے اچھا خاصا کما لیتے تھے، لیکن کھانا پکانا انہیں بہت پسند تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کھانا پکا کر مجھے سکون ملتا ہے اور اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ ظفری بابا کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس گاؤں سے دور ایک شہر میں رہائش پذیر تھا۔ سال میں ایک بار اپنے باپ سے ملنے کے لیے آ جاتا۔ وہاں وہ اچھا پیسہ کما رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کا کھانا پکانے کا کام بالکل پسند نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے باپ کو بس گاؤں میں رہنے کا شوق ہے، وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ ان کے بیٹے کی باتیں گاؤں والوں کو بری لگتی تھی کہ اتنے اچھے ظفری بابا کا اتنا بیٹا خڑوس کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ گاؤں میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ خود بھی اسی گاؤں میں پل کر بڑا ہوا تھا، مگر اسے گاؤں سے نفرت تھی۔ جب اس نے شہر جانے کی ضد کی تو ظفری بابا نے کچھ نہیں کہا اور اسے جانے دیا۔ اب وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے۔ ان کی شریک حیات کئی سال پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ ظفری بابا کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، وہ تنے تنہا رہتے، بس ان کے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور تھے اور وہی ان کا خاندان تھے۔ وہ ہر ایک کا بے حد خیال رکھتے۔ گاؤں میں کوئی بیمار ہو جاتا تو فوراً اس کی تیمارداری کے لیے جاتے۔ ظفری بابا سے گاؤں والے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر مجھے گاؤں کے پرانے واقعات سناتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے ایسی کہانی سنائی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں جو جنات کے بارے میں جاننے کے لیے کبھی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اب ظفری بابا نے مجھے یہ کہانی سنائی تو میں حد سے زیادہ حیران رہ گیا۔ ان کی کہانی تھی ہی ایسی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سال پہلے یہ گاؤں بالکل ویران ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، آس پاس آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دور دور گاؤں والے بھی اس گاؤں میں نہیں آتے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ یہاں پر بری آتمائیں رہتی ہیں، وہ اس گاؤں میں کسی کو بھی ٹکنے نہیں دیتی۔ لوگوں کی ایسی باتیں سن کر ظفری بابا پریشان ہو جایا کرتے، کیونکہ روزانہ کام کاج کے سلسلے میں انہیں اسی گاؤں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت ہی جایا کرتے اور دن ہی دن میں واپس آ جاتے تھے۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں ان آتماؤں کا سایہ ان کے اوپر بھی نہ ہو۔ وہ بچپن سے ہی کافی محنتی تھے۔ ایک دن وہ کافی دیر تک کام میں مشغول رہے۔ انہیں واپس آتے آتے شام ہو گئی۔ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے۔ پورے گاؤں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ گاؤں میں بہت سے لوگ روشنیاں جلائے موجود ہیں۔ جگہ جگہ ظفری بابا کو گھر بھی نظر آ رہے تھے۔
انہیں لوگوں کی باتیں سچ لگیں کہ ضرور یہاں پر آتماؤں کا سایہ ہے۔ وہ کافی گھبرا گئے۔ جب گاؤں کے بیچوں بیچ پہنچے تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور زبردستی انہیں اپنے گھر لے گئے۔ وہاں بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ ظفری بابا نے بتایا کہ ان سب کے چہروں پر عجیب و غریب قسم کے نشانات تھے اور وہ ایک ایسی زبان میں باتیں کر رہے تھے جس سے میں ناواقف تھا۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی دعوت میں شامل ہوں۔ مجھے ان سے حد سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی دعوت کو قبول کیا اور کھانا کھانے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، اور جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے گھر پر پایا۔ اس واقعے نے تو میری زندگی کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ اس دن کے بعد سے میں دوبارہ اس راستے سے گزر کر کبھی کام کے لیے نہیں گیا۔ پھر سالوں بعد ایک آدمی آیا جو بھوت پریتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اس گاؤں میں اپنا گھر بنایا اور رہنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس آدمی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا تو آہستہ آہستہ کر کے سب یہاں پر اپنے اپنے گھر بنانا شروع ہو گئے۔ یوں اس گاؤں میں آبادی بڑھنے لگی اور یہ گاؤں آباد ہو گیا۔ میں نے بھی اپنا گھر بنا لیا، لیکن اس واقعے کو میں کبھی بھول نہیں پایا۔ میں نے کبھی اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، بس تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں نے ظفری بابا سے کہا، آپ کو اب بھی جنات سے ڈر لگتا ہے؟ تو ہنس پڑے اور کہنے لگے، نہیں، میں اب ان چیزوں سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جنات نے مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بھی اس گاؤں میں جنات موجود ہیں۔ ویسے بھی ہر جگہ جنات ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ظفری بابا کی باتیں سن کر اگلے کئی دن تک میں خوف میں مبتلا رہا اور رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتا تھا۔ یوں لگتا جیسے مجھے بھی کوئی جنات پکڑ کر اپنی دعوت میں لے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر میں اس بات کو بھولنے لگا اور اپنے کام پر دھیان دینے لگا۔ انہی دنوں زمیندار کے بیٹے کی شادی طے ہو گئی۔ گاؤں میں شادی کا کھانا ہم لوگ ہی بناتے تھے، اس لیے زمیندار نے ہمیں اپنے گھر پر بلایا اور ظفری بابا کو ہدایات دی کہ شادی کا کھانا بہت ہی بہترین ہونا چاہیے، مہمانوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے اور وقت پر ہر چیز تیار کر لینا۔ انہوں نے کھانے کی لسٹ ظفری بابا کو تھما دی۔ زمیندار کو ظفری بابا نے یقین دلایا کہ کھانا بہت ہی بہترین ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا کانٹریکٹ ہے، زمیندار اس کے اچھے خاصے پیسے دے گا۔ میں بھی خوش تھا کہ چلو چند پیسے زیادہ آ جائیں گے تو گھر کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ظفری بابا میری مجبوری سمجھتے تھے، اسی لیے سب سے پہلے مجھے ہی پیسے دیتے۔ ویسے بھی جب بھی مجھے ضرورت پڑتی تو وہ مجھے بنا کچھ کہے پیسے دے دیا کرتے۔ گاؤں بھر میں شادی کا اعلان ہو گیا، سب لوگ شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہے تھے۔ زمیندار نے سب کے حصوں میں کام بانٹ دیے تھے۔ ہم سب جانتے تھے کہ زمیندار کے اکلوتے بیٹے کی شادی کتنی شاندار ہوگی، اسی لیے جی جان لگا کر تیاریاں کر رہے تھے۔ زمیندار بہت ہی ظالم انسان تھا، گاؤں والے اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس نے گاؤں کے بہت سے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا، لوگوں کو مجبوراً اس کی بات سننا پڑتی۔ ذرا سی غلطی پر وہ بری طرح سزائیں دیتا۔ سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ پہلے میری ماں اس کی حویلی میں کام کرتی تھی، لیکن اماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجبوراً اسے کام چھوڑنا پڑا۔ تب زمیندار کی بیوی نے مجھے بہت زیادہ باتیں سن کہ کام چھوڑ کر جا رہی ہے، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن مجبوری تھی، ہم انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ان کے پاس حد سے زیادہ پیسہ تھا اور وہ اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ لوگوں کو دبا کر رکھنا انہیں بہت پسند تھا۔ زمیندار تو گاؤں کے بچوں کو تعلیم بھی حاصل نہیں کرنے دیتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر لوگوں میں شعور آ گیا تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس نے گاؤں کا واحد اسکول بھی توڑوا دیا تھا اور کہا کہ میرے خلاف جو بھی جائے گا میں اس کا حشر برا کروں گا۔ اس لیے ظفری بابا بھی اسے ڈرتے تھے۔ اس نے ظفری بابا کی بھی کئی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور کسی بھی حالت میں وہ قبضہ چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ مجھے بھی زمیندار بالکل پسند نہیں تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی میرا اس سے براہ راست سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کا بیٹا بھی اس کی کاپی تھا۔ گاؤں والوں سے بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آتا تھا، اپنے سے بڑوں سے بدتمیزی کرتا تھا۔ کئی بار تو ظفری بابا سے بھی لڑ چکا تھا۔ ظفری بابا اچھا انسان تھا، آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ زمیندار کی بہت بڑی حویلی تھی اور ہمیں اسی حویلی کے پچھلے حصے میں کھانا بنانے کا کام کرنا تھا۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ بچا تھا۔ جتنی بھی تقریبات ہونی تھی ان سب میں کھانا پکانے کا انتظام ہمیں ہی کرنا تھا۔ ظفری بابا بہت ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور زمیندار ہمیں سزا نہ دے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہمارا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور اس بات کا زمیندار کو بھی پتہ ہے۔
वरना वो शहर से भी किसी और को बुलवा सकता था। उसके पास पैसों की कमी नहीं है। मेरी बात सुनकर बाबा भी पुरसुकून हो गए। उनका बनाया खाना हर जगह मशहूर था, इसलिए ज़मींदार की मजबूरी थी। उसने शहर से बड़े बड़े लोगों को बुलवाया हुआ था और वो नहीं चाहता था कि शादी में किसी किस्म का मसला हो और उसकी बेइज्जती हो। उसे सिर्फ अपनी परवाह रहती। वो लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करता और इसी बात पर फख्र भी करता था। उसकी बीवी भी उसके जैसी ही थी। ज़मींदार की एक बेटी और भी थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। सबका कहना था कि वो बहुत हसीन है, तभी ज़मींदार उसे छुपा कर रखता है ताकि किसी की भी नज़र उसके ऊपर ना पड़े। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। हवेली की मुलाजमा अजीब अजीब बातें करते थे। किसी का कहना था कि वो ज़मींदार की सगी बेटी नहीं है और कोई कहती कि शायद वो लड़की माजूर हो, तभी ज़मींदार उसे छुपा कर रखता है ताकि दूसरों के सामने उसका मजाक ना बने। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। उसके बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि मुझे तजस्सुस होता था कि आखिर वो लड़की है कौन और बाहर क्यों नहीं आती। लेकिन अब सबका कहना था कि जब उसके सगे भाई की शादी हो रही है तो वो ज़रूर सबको नज़र आएगी। मैं भी इसी तजस्सुस में था कि कम से कम उसे देख तो पाऊंगा कि वो है कौन और आखिर उसे इतना छुपा कर रखने की क्या ज़रूरत है। हमें आज शाम से ही अपना काम शुरू करना था क्योंकि आज शादी से पहले की तकरीबात का आगाज़ होने वाला था। हम सब जानते थे कि ये शादी तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहेगी और उसके बाद भी बाकी दावतें होती रहेंगी और सबका खाना हमें ही पकाना होगा। दोपहर के वक्त ही जफरी बाबा और हम सब लड़के यहाँ काम पर आ गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी से देगें धोकर ले आओ। हम सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखते थे। हालांकि देगें पहले से धुली हुई थीं, लेकिन एक बार फिर भी धोना ज़रूरी था ताकि खाने में किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जफरी बाबा को डर लग रहा था कि अगर ज़रा सी भी देर हो गई तो ज़मींदार गुस्सा करेगा और उसके गुस्से को झेलने की हम में से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं देगें वगैरह धोकर वापस आया तो जफरी बाबा ने खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। शाम तक खाना तैयार हो जाना चाहिए था। तरह तरह के खाने बनाने थे। हम सब अपने काम पर लग गए और तेज तेज हाथ चलाने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी हवेली में खाने की खुशबुएं फैल गईं। हम हवेली के जिस हिस्से में थे वहां पर बहुत से कमरों की खिड़कियां नजर आती थी। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे ऊपर से कोई हमें देख रहा है। बार बार किसी की निगाहों का एहसास हो रहा था। मैंने कई बार सर उठाकर देखा मगर मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन यह एहसास हर गुजरते लम्हे के साथ शिद्दत इख्तियार करता गया। मैंने साथ काम करने वाले एक लड़के से पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तुम्हें देख रहा है? तो उस लड़के ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम क्यों ये बात पूछ रहे हो? आखिर हमें कौन देखेगा? सब लोग तो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। उसकी बात भी ठीक थी। शायद मेरा वहम हो, लेकिन दोबारा मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सर उठाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है? मैं मुसलसल सोचे जा रहा था। जफरी बाबा ने कहा, बेटा, किन सोचों में गुम हो, काम पर ध्यान दो, शाम हो गई है। उनके कहने पर मैं खाने की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। खाना तकरीबन बन चुका था और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। जमींदार ने हिदायत की थी कि मेहमानों के आने के 1 घंटे बाद ही खाना खोल दिया जाए और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जब खाना खोला गया तो सब लड़के अंदर जाकर खाना पेश करने लगे। मैं वहीं देगों के पास बैठ गया। बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था। ज़रूर मुझे कोई देख रहा था, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा था, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता था। अगले दिन दोबारा से मुझे कोई देख रहा था। तभी मेरी निगाह वहाँ से झांकती एक लड़की के ऊपर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर तो मैं हैरान रह गया। यकीनन वो ज़मींदार की बेटी थी। शादी की तकरीब में भी ज़मींदार ने उसे शामिल नहीं होने दिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर मैंने उसे देख लिया था। काम करते करते हमें काफ़ी देर हो गई थी। जफरी बाबा ने मुझे कहा कि देखे संभाल कर रख लेना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। मेहमान भी वापस जा चुके थे। सिर्फ मैं अकेला रह गया था। रात काफ़ी हो गई थी। काम समेटकर मैं घर की तरफ निकल ही रहा था, तभी मेरी निगाह हवेली से निकलते एक वजूद पर पड़ी। मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि ये तो वही लड़की है जो ऊपर से मुझे देख रहे थे। ज़मींदार की बेटी इस पहर कहाँ जा रही होगी? वो हवेली से निकलकर जंगल वाले रास्ते पर चलने लगी। मैंने धीरे धीरे उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। आखिर वो इस पहर जंगल की तरफ क्यों जा रही थी? वहाँ ऐसा क्या था जिसमें उस लड़की को दिलचस्पी थी? वो चलती थी तो उसके पाँव में मौजूद पायल की आवाज़ दूर तक गूंजती थी। उस सन्नाटे में वो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। इस बात का उसे इल्म नहीं था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैं दबे कदमों चल रहा था। मुझे तो आदत थी रोज़ाना उन रास्तों से गुजरने की।
लेकिन वो अकेली लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, इस पहर कहाँ जा रही थी? ये सोचकर तो मेरा दिमाग घूम रहा था। अगर ज़मींदार को पता चल गया कि उसकी बेटी यूं छुपकर हवेली से निकली है और जंगल की तरफ जा रही है, तो ना जाने वो अपनी बेटी का क्या हश्र करेगा। वो ज़रूर उसे भयानक सज़ा देगा। बेशक वो उसकी बेटी है, लेकिन ज़मींदार को अपनी अना से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं थी। वो किसी के सामने अपने आप को झुकते नहीं देख सकता था। वो लड़की चलती जा रही थी और फिर चलते चलते वो जंगल के बीच रुक गई। मैंने गौर किया तो पता चला वो जिस जगह रुकी है वहाँ एक छोटी सी कब्र बनी हुई थी। वो लड़की घुटनों के बल उस कब्र के पास बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुनसान रात में जंगल के बीचों बीच कब्र के सामने बैठी वो रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ अजीब खौफ फैला रही थी। जैसे जैसे वो रोती जा रही थी, आसपास रोशनियां जलती जा रही थी। ये मंजर देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरा जंगल रोशनियों से भर गया था, पर मैंने देखा वहाँ पर बहुत से लोग जमा हैं और उस लड़की को दिलासा दे रहे हैं, और वो रोए जा रही है। वो लोग कौन थे? उनके चेहरे मुझे साफ दिख नहीं रहे थे। मैंने आगे बढ़कर देखना चाहा तो मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया। मैं मुंह के बल गिर गया, और जब मैं दोबारा उठा तो आसपास कोई भी नहीं था। ना तो रोशनी, ना वो खबर, और ना ही वो लड़की। वो लोग भी वहाँ से गायब थे। एक पल के अंदर आखिर ये सब कहाँ चले गए? मैंने हैरत से इधर उधर देखा, मगर वो लड़की तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरे सामने वो हवेली से निकलकर यहाँ आई थी और बैठकर रो रही थी, तो अचानक कहाँ गायब हो गई? पूरा जंगल छानने का इरादा किया और जंगल के हर कोने में जाकर देख लिया, मगर वो नज़र नहीं आई। मैं भागा भागा हवेली की तरफ आया तो सामने का मंजर देखकर मैं खौफ से कांपने लग गया, क्योंकि वो लड़की मेरी निगाहों के सामने हवेली के दरवाजे से अंदर जा रही थी। मैं खौफ के हिसार में जकड़ सा गया था। वापस घर आया तो अम्मा ने कहा, इतनी देर से वापस क्यों आया है? जफरी बाबा तो कब के आ चुके थे, और उन्होंने बताया था कि तुम भी 10-15 मिनट में वापस आ जाओगे, लेकिन तुम तो कई घंटों के बाद लौट कर आ रहे हो। आखिर इतनी देर कहाँ थे? मैंने अम्मा से कहा कि परेशान मत हो, मुझे एक दोस्त के घर जाना पड़ गया था, कुछ काम था, आप सो जाएं। अम्मा सो गई और मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया और बार बार उसी बारे में सोचने लगा। मेरे कमरे की खिड़की जिस घर की तरफ खुलती थी वो एक सुनसान सा घर था और वहाँ कोई नहीं रहता था। मैं अक्सर खिड़की से बाहर झांकता रहता। मैं अभी भी वहीं बैठकर बाहर झांक रहा था और उस घर को देखते हुए चुपचाप उस लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से उस पूरे घर के ऊपर मुझे रोशनियाँ ही रोशनियाँ नजर आई, बिल्कुल वैसी रोशनियाँ जैसी मैंने थोड़ी देर पहले जंगल में देखी थी। आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? इस वीरान मकान में तो कोई भी नहीं रहता, तो ये रोशनियाँ कौन जला रहा है? डर के मारे मैंने खिड़की बंद कर दी और अपनी जगह पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद थी कि आ ही नहीं रहे थे। बार बार वही मंजर मेरे सामने आता। आखिर वो कब्र किसकी थी? मुझे सबसे ज़्यादा तजस्सुस तो उस कब्र को लेकर ही हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि कल दिन के वक्त में वहाँ जाकर देख आऊँगा कि वहाँ कोई कब्र मौजूद है या नहीं। अगर कोई कब्र हुई तो पता लगा लूँगा कि वो किसकी कब्र है और उस लड़की का इस कब्र से क्या ताल्लुक़ है। वो वहाँ बैठकर क्यों रो रही थी और क्या ज़मींदार उस कब्र के बारे में जानता है? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए मुझे सुबह का इंतज़ार करना था और वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। मेरी पूरी रात करवटें बदलते गुजरे। अगली सुबह उठा तो अम्मा ने कहा, तुम रात को सोए नहीं थे? आंखें कितनी सूज रही हैं तुम्हारी? मैंने अम्मा से कहा कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और मुझे काम पर जाना है। नाश्ता वगैरह करके मैं घर से बाहर निकल आया। अम्मा से तो मैंने कहा था कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं उस जंगल की तरफ जाने का इरादा किया था। इधर उधर देखा कि कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा और चुपचाप उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे उस जंगल की तरफ जाते देखे और जाकर मेरे घर वालों को इस बारे में कुछ बताए, क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह जंगल की तरफ जाता तो लोगों को तजस्सुस होता कि इतनी सुबह जंगल में क्या लेने जा रहा हूँ। मैं लोगों की नज़र से बचकर जंगल में आया तो देखा वहाँ पर कोई भी कब्र मौजूद नहीं थी। वो छोटी सी कब्र आखिर गई कहाँ? मैंने अपनी आंखों से देखा था, यहीं पर थी। अभी मैं बैठा यही सब सोच रहा था, तभी मेरी निगाह वहाँ पर मौजूद जफरी बाबा पर पड़ी। जफरी बाबा यहाँ क्या कर रहे? मैंने हैरत से सोचा और उनकी तरफ चला आया। वो दरख्त से टेक लगाए बैठे थे और मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने उनसे कहा, जफरी बाबा आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? खैरियत तो है ना? जफरी बाबा ने कहा, हाँ हाँ खैरियत है, बस मैं यहाँ पर वैसे ही आ गया। अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन तुम्हें पहली बार देखा है। तुम क्यों आए थे? मैंने पहले सोचा कि जफरी बाबा को सारी बात बता देता हूँ। वैसे भी मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता था,
लेकिन फिर ये सोच कर खामोश हो गया कि कहीं वो ये ना सोचें कि मैं खुद से कहानी बनाकर सुना रहा हूँ। मैंने बहाना बनाया कि वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि जंगल का चक्कर लगा लूँ। काफ़ी वक्त हो गया कि रुख नहीं किया था। बचपन में यहाँ पर कितनी देर खेला करता था। मुझे हमेशा से जंगल में आकर खेलना पसंद था और मेरे दोस्त जंगल में आने से रोकते थे। मैं बैठकर जफरी बाबा से बातें करता रहा, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आते हैं। इस वीरान जंगल में ऐसा क्या है? मैं तो कब्र को देखने के लिए आया था, लेकिन वो किस मकसद से आए थे? हम दोनों फिर साथ ही वहाँ से निकल आए। हमें ज़मींदार की हवेली में जाकर आज के फंक्शन के लिए खाने का बंदोबस्त करना था। हवेली में दाखिल होते ही मेरी निगाह ऊपर वाले कमरे पर पड़ी। यकीनन वो यहीं पर रहती होगी, क्योंकि ये कमरा अक्सर बंद रहता था और उस दिन भी तो वो वहीं ऊपर से झांक रहे थे। कितनी खूबसूरत थी वो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद इसीलिए ज़मींदार ने उसको छुपा कर रखा हुआ। हम दोनों हवेली के पिछले सहन में आए और खाना बनाना शुरू कर दिया। बार बार मेरी निगाह उठाकर उस खिड़की की तरफ मैं देखता और जफरी बाबा शायद मेरी ये हरकत नोट कर रहे थे। मुझसे कहने लगे, दूसरों के घरों में इस तरह नहीं देखते, गलत बात है। ज़मींदार को पता चला तो बहुत गुस्सा करेगा। मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वहाँ से कोई मुझे देख रहा है। जफरी बाबा मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। खाना वगैरह बनाकर हम फारिग हुए तो शाम हो चुकी थी। जफरी बाबा और हम लड़के मिलकर खाना लगा रहे थे। तभी मालकिन ने मुझसे कहा कि ऊपर वाले कमरे में कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, उन्हें भी जाकर खाना दे आओ। मैं सर हिलाकर ऊपर चला आया। उनके कोई रिश्तेदार ऊपर भी बैठे थे। उनके सामने खाना रखा। अभी कमरे से बाहर निकला ही था कि मेरी निगाह उस कमरे पर पड़ी और मुझे तजस्सुस होने लगा। मैं सबकी नज़र बचाकर चुपके से उस कमरे के बाहर आ खड़ा हुआ। सब लोग तकरीब में मशगूल थे। मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उस जगह पर वैसे भी अंधेरा था। मैंने दरवाज़ा खोला और दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक कोने में लैंप जल रहा था और उसी की रोशनी में मुझे बिस्तर के करीब बैठी वो लड़की नजर आई। मैं उसके करीब चला आया। उसने निगाह उठाकर मुझे देखा और कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी ने देखा तो तुम मारे जाओगे। निकल जाओ यहाँ से, वरना वो सब लोग तुम्हें मार देंगे। मैंने उस लड़की से पूछा कि कौन सब लोग, और तुम यूं कमरे में क्यों बंद रहती हो? ज़मींदार की अकलौती बेटी हो, फिर भी वो तुम पर इतना जुल्म करता है। उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं ज़मींदार की बेटी नहीं हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि यहाँ से निकल जाओ, फिर भी तुम जिद कर रहे हो। मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। उसकी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द उस कमरे से निकल जाऊँ, लेकिन आज तो मैं हर हाल में उस राज का पता लगाकर ही यहाँ से निकलना चाहता था। मुझ में अजीब सी जिद आ गई थी। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। मेरी जिद करने पर उसने कहा, मेरा नाम कायनात है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम किसी की बात सुनते क्यों नहीं हो? उसके बार बार कहने पर मैं वहाँ से बाहर निकल आया। शुक्र है उसने मुझसे बात तो की और मुझे उसका नाम तो पता चला। आज रात वो दोबारा से हवेली से बाहर निकली और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। मैंने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल के बीच जाकर वो रुक गई और फिर से उस कब्र के पास बैठकर रोना शुरू कर दिया। जब भी वो उस जंगल में आती, वहाँ पर एक कब्र नजर आती और आसपास रोशनियाँ जलाए बहुत से लोग आकर उस लड़की के पास बैठ जाते। वो हमदर्दी करते। मैं चुपचाप खड़ा ये मंजर देख रहा था। मेरे देखते ही देखते वो सारी रोशनियाँ बुझने लगी और लोग भी गायब हो गए। फिर वो लड़की और कब्र वहाँ पर ही नजर आए। वो लड़की रोए जा रही थी और रोते रोते वो बेहोश हो गई। मैं उसके करीब गया तो अचानक से वो कब्र गायब हो गई। उस लड़की को उठाकर मैं हवेली की तरफ ले आया। रात के वक्त हवेली में सन्नाटा छाया था। तकरीब की वजह से सब थके हारे अपने कमरों में सो रहे थे। मैं जानता था कि इस वक्त कोई भी नहीं जाग रहा होगा। मैंने सोचा चुपचाप इस लड़की को इसके कमरे में पहुंच जाकर वापस चला जाऊंगा। ना जाने ये किस मुसीबत में मुब्तला है और किसकी कब्र पर बैठकर रोती है। इसीलिए मैं उसके कमरे में आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया और चुपचाप उसके कमरे का जायजा लेने लगा। वहाँ पर बहुत अजीब व गरीब चीज़ें मौजूद थे। यूँ लगता था जैसे वो कोई अमल वगैरह करती है। जगह जगह तावीज़ लटक रहे थे। वो लड़की सोई बहुत खूबसूरत लग रही। उसके गले में भी एक तावीज़ था। मैं पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह हुई तो मैं परेशान हो गया। अब तो हवेली वाले सब जाग गए होंगे। मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा? अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मुझे हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। अब मुझे कैसे भी करके उस हवेली से बाहर निकलना था, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस कमरे से निकलता तो सामने ही किसी न किसी से टाकरा हो जाता और ज़मींदार तक ये बात पहुँच जाती कि मैं उसकी बेटी के कमरे में मौजूद। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था।
जानता था कि अम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी और मेरे इंतज़ार में पूरी रात नहीं सोई होंगी। हो सकता है वो जफरी बाबा के पास चली गई हों और मेरे बारे में सवालात कर रही हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उस लड़की के पीछे पीछे हूँ तो वो फ़ौरन से मुझे उस गांव से लेकर चली जाएंगी। ज़मींदार से उन्हें बहुत डर लगता था। वैसे भी हम गरीब लोग थे, ज़मींदार हमें तबाह बर्बाद कर देता। अभी खड़ा मैं यही सब सोच रहा था कि अचानक उस लड़की की आंख खुल गई। मुझे अपने कमरे में देखकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें उस दिन भी मैंने मना किया था कि यहाँ पर मत आना, क्यों मरना चाहते हो? मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि तुम रात को जंगल की तरफ जा रही थी। मैं 2 दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा था और मुझे पता चला कि तुम वहाँ किसी कब्र पर रोती रही हो और जब मैं करीब जाता हूँ तो वहाँ से वो कब्र गायब हो जाती है। कल तुम बेहोश हो गई थी तो मैं उठाकर तुम्हें यहाँ लेकर आया और पूरी रात यहीं रुक गया था। पता नहीं चला मुझे कब सुबह हुई और अब मैं फंस गया हूँ। यहाँ से निकलूंगा तो कोई ना कोई मुझे देख लेगा। मुझे किसी भी तरह इस हवेली से सही सलामत निकाल दो। जब मैंने उस लड़की को बताया कि मैं जंगल में तुम्हारे पीछे आया था तो वो परेशान हो गई और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा था कि मेरा पीछा करो? ये सब बातें जानकर भी तुम क्या कर लोगे? तुम तबाह हो जाओगे। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि निकल जाओ यहाँ से। आओ मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ और दोबारा मेरे पीछे मत आना, वरना मैं ज़मींदार से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। अब की बार उसकी धमकी कारगर साबित हुई और मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि मैं आइंदा उसका पीछा नहीं करूँगा। और बेहतर यही था, अगर मैं अपने ख़ानदान को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहता था तो बेहतर था कि मैं उस लड़की से दूर हो जाता और उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ देता। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि अब मैं दोबारा कभी उस लड़की के पीछे नहीं पड़ूंगा। उसने अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोला और मुझसे कहने लगी कि उसके अंदर आ जाओ। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, मुझे हवेली से बाहर निकलना है। तुम मुझे ये क्या कर रही हो? मगर लड़की ने मुझे कहा कि तुम इसके अंदर जाओ, यहीं इससे रास्ता आता है। मैं अलमारी के अंदर खड़ा हुआ तो उसने हाथ से अलमारी में मौजूद एक दरवाज़ा खोला। वो खुफिया दरवाज़ा था। मैं हैरान हो गया कि इस अलमारी के अंदर भी खुफिया दरवाज़ा है। उस दरवाजे के पीछे कुछ सीढ़ियाँ मौजूद थी। लड़की मुझे साथ लिए नीचे उतरने लगी। चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। मैंने मुड़कर उस लड़की से कहा कि आखिर हम कब पहुँचेंगे और ये कैसी जगह है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो मुझसे कहने लगी कि चुपचाप चलते रहो और मेरा नाम लड़की नहीं बल्कि कायनात है। मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो। मैं तो भूल ही गया था कि मैं उसका नाम भी जानता हूँ। खैर, वो मुझे लिए आगे बढ़ती गई। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक और दरवाजे के सामने आकर रुक गई और उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो और अब दोबारा कभी मत आना। इस रास्ते के बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोला और मैं हैरान रह गया कि वो दरवाज़ा तो जंगल में जाकर खुल रहा है। सामने तो जंगल था। उसने मुझे बाहर निकाला और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर आया और मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी दरवाज़ा नहीं था। वो गायब हो चुका था। मैं जंगल के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह जहाँ वो कब्र मौजूद होती थी। खौफ के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। यह सब क्या हो रहा था? कितनी पुरस्रार लड़की थी। मैं भागता हुआ गांव की तरफ चलने लगा। घर पहुंचा तो अम्मा ने कहा, क्या हुआ है? पूरी रात कहाँ गायब थे और अभी इतना परेशान क्यों हो? मैंने अम्मा से कहा कि कहीं नहीं, काम से हवेली में ही रुक गया था। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। अम्मा बोली, न जाने कैसी अजीब हरकतें करता रहता है। कुछ दिन से मैं देख रही हूँ इतनी देर से घर पर आता है और बहाने बनाता है। अम्मा की बातों पर मैंने कान नहीं धरे और चुपचाप उस लड़की की ऐसी पुरस्रार हरकतों के बारे में सोचने लगा। आखिर इस सब के पीछे क्या राज छुपा है? एक दिन मैं किसी काम से जफरी बाबा के घर गया। मैंने दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने काफ़ी देर से दरवाज़ा खोला, हालांकि वो फ़ौरन खोल देते थे। मैं अंदर आया तो देखा मेज़ पर 2 कप पड़े थे। मैंने उनसे पूछा, क्या घर पर कोई आया हुआ है? मैं बाद में आ जाता हूँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ये तो चाय मैंने ही पी है, तुम आकर बैठो। ऐसा लग तो नहीं रहा था क्योंकि जफरी बाबा चाय पीने के इतने शौकीन नहीं थे। बहरहाल मैं बैठ गया और उनसे बातचीत करने लगा। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई और भी मौजूद है, लेकिन जफरी बाबा इतने घबराए हुए लग रहे थे और मेरी किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रहे थे। यकीनन वो कुछ छुपा रहे थे। उस दिन वो जंगल में बैठे हुए थे और अब वो इतना घबरा क्यों रहे थे? ये सब बातें मुझे परेशानी में मुब्तला कर रही थी। अगर वो किसी मुसीबत में थे तो मुझे बता सकते थे, मैं उनकी मदद करके खुशी महसूस करता, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी मगर उन्होंने मुझे टाल दिया। अगले कई दिन तक दोबारा जफरी बाबा से बात करने का मौका न मिला क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। बस स्टैंड पर खाना वगैरह बेचना होता
और वो लड़की भी मुझे दोबारा नजर नहीं आई। मैंने कई बार जंगल का चक्कर लगाया, वहां पर ना तो कोई कब्र दिखी और ना ही लड़की, ना ही वो दरवाजा जिससे उसने मुझे बाहर निकाला था। मैं हैरत में मुब्तला हो गया। फिर एक दिन रात के वक्त मैं काम से फारिग होकर घर जा रहा था। जफरी बाबा का घर रास्ते में ही पड़ता था। गुजरते गुजरते मेरी निगाह उनके घर पर पड़ी तो पूरा घर रोशनियों से भरा हुआ था, बिल्कुल वैसी रोशनी जैसी मुझे जंगल में नजर आती थी। ये रोशनी जफरी बाबा के घर पर आखिर क्या कर रही है, यही सोचकर मैं उस तरफ चला आया। अब तो जस्टिस खौफ के ऊपर गालिब आ गया था। पहले सोचा कि दरवाज़ा बजाकर घर के अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर ख्याल आया कि जफरी बाबा घबरा जाएंगे और मुझे कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए बेहतर है कि घर के पिछले हिस्से में मौजूद खिड़की से देखूं। वैसे भी ये तो बहुत गलत हरकत थी, लेकिन उस वक्त मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गया था। मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ आया जो बिल्कुल सुनसान पड़ा था और बाकी घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो वही लोग मौजूद थे जो उस रात जंगल में नजर आए थे। तभी मेरी नज़र अचानक से उस लड़की पर पड़ी। ये तो वही जमींदार की बेटी कायनात थी। वो यहाँ क्या कर रही है और जफरी बाबा भी सामने ही बैठे हैं। क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? ये सब चल क्या रहा है? हालांकि जमींदार की बेटी को तो कभी किसी ने देखा भी नहीं था, वो तो जफरी बाबा के साथ क्या कर रही है? मैं फौरन से सामने वाले हिस्से की तरफ आया और जोर जोर से दरवाज़ा बजाया। जफरी बाबा ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर घबरा कर कहने लगे कि रात के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जफरी बाबा से कहा कि मैंने सब देख लिया है, आप कायनात के साथ यहाँ पर है ना? वो फौरन से घबराने लगे और कहने लगे, बेटा नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मगर मैं ज़बरदस्ती अंदर घुस आया। सामने वो लड़की बैठी हुई थी। मुझे देखकर परेशान हो गई और उठ खड़ी हुई। मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताएं, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? और ये रोशनियाँ, ये लोग कौन हैं? आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? अब कोई चारा नहीं बचा था, उन्हें सच बताना ही था। जफरी बाबा ने मुझे कहा कि ठीक है, हम तुम्हें सारा सच बताएंगे, लेकिन उसके बाद तुम हमसे कोई सवाल नहीं करोगे और वादा करो कि ये गांव छोड़ कर चले जाओगे। तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी किस्म का कोई नुकसान उठाओ। जफरी बाबा के कहने पर मैंने उनसे वादा कर लिया। ना जाने ऐसी क्या बात थी कि जिसके लिए वो मुझे गाँव छोड़ने का कह रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि जिन्नात की दावत में क्या था? वो बात बिल्कुल सच थी, उसमें झूठ कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से मैं जिन्नात की दावत में जाया करता था। उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। गांव में इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मेरी बीवी असल में एक दाई थी। जब जमींदार की बीवी दूसरी बार हामला हुई तो उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हर दूसरे दिन जमींदार अपनी बीवी को मेरी बीवी के पास ले आता और उसका इलाज करवाने की कोशिश करता। एक दिन मुझे जिन्नात ने बताया कि उसका बच्चा मर जाएगा और अगर वो बच्चा मर गया तो ज़मींदार तुम्हारी बीवी पर इल्ज़ाम लगा देगा और वो बहुत जुल्म करेगा। ज़मींदार कितना सख्त मजाज का था हम सब जानते थे। जिन्नात की बात बिल्कुल सही साबित हुई। जिस वक्त उस बच्चे की पैदाइश हुई वो बच्चा मुर्दा हालत में पैदा हुआ। मेरी बीवी बहुत परेशान हो गई। मैंने अपनी बीवी को इशारा किया और कहा कि अभी किसी को कुछ मत बताना। मैं जिन्नात के पास आया और उनसे मदद मांगी। उन्होंने हमें एक नौमौलूद बच्ची लाकर दी और कहा कि यही बच्ची ज़मींदार को दे दो और हमेशा इसकी हिफाजत करेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने ज़मींदार से यही कहा है कि आपके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है और इस मुर्दा बच्ची को जाकर हम जंगल के बीचों बीच दफना दिया है। जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती गई उसकी आदत की वजह से ज़मींदार परेशान होता गया। उसे लगता था कि उसके ऊपर जिन्नात का साया है, हालांकि वो जानता ही नहीं था कि कायनात ही दरअसल एक जिन्नज़ादी है। वो अक्सर उसे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। यूँ लगता है जैसे वो मुर्दा पैदा होने वाला बच्चा उसे तकलीफ पहुंचा रहा है। ये उसकी कब्र के पास जाती है और वहाँ बैठकर रोती है। ज़मींदार इसीलिए इसे कमरे में बंद रखता है, लोगों के सामने नहीं लाता। अब उसने इसकी शादी तय कर दी है। मसला ये है कि उसकी शादी एक इंसान से की जाएगी। ज़मींदार को इस बात का इल्म तो है नहीं कि ये एक जिन्नज़ादी है और ये इंसान से शादी नहीं कर सकती। अब हम परेशान हैं कि क्या करें। ये अक्सर मुझसे मिलने आती रहती है। इस बारे में कोई नहीं जानता। उनकी दास्तान सुनकर मैं तो खौफज़दा हो गया था। कुछ दिन बाद जफरी बाबा ने बताया कि ज़मींदार ने उसकी शादी तय कर दी है और उसकी शादी का खाना भी तुम्हें ही बनाना है। मैं परेशान था कि एक जिन्नज़ादी की बारात आएगी और उसका खाना मुझे बनाना पड़ेगा। मैं ना चाहते हुए भी उस काम के लिए हाँ कर चुका था, मगर दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर वो एक इंसान के साथ शादी करके कैसे रहेगी। जफरी बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वो इस मामले में क्या करेंगे। वैसे भी वो क्या कर सकते थे? अगर ज़मींदार को असल बात का पता चल जाता तो वो जफरी बाबा के साथ साथ उस लड़की को भी नुकसान पहुंचाते।
اور ظفری بابا ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اس کی بارات کے دن میں نے بہت اچھا کھانا بنایا، سب مہمانوں کی تعریف کی، لیکن جیسے ہی نکاح کا وقت آیا تو وہ ایک دم سے لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی اور ساتھ میں ہی ظفری بابا بھی غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور جنات انہیں وہاں سے لے گئے ہیں، کیونکہ جنات نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی حفاظت کریں گے۔ اگر اس لڑکی کی شادی ایک انسان سے ہو جاتی تو وہ ضرور کچھ دن میں یہ بات جان جاتا کہ وہ لڑکی دراصل انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ پوری بارات میں ہنگامہ مچ گیا، سب لوگ زمیندار کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ پہلی بار تو زمیندار کی بیٹی سب کے سامنے آئی تھی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر سب حیران تھے، اور اب اچانک سے وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ دونوں کہاں پر ہوں گے، اس لیے سارا کام چھوڑ کر جنگل کی طرف آیا، اور میری توقع کے عین مطابق وہ جنگل کے بیچوں بیچ موجود تھے۔ اب کی بار وہ مجھے قبر صاف نظر آ رہی تھی، اور جب میں اس کے قریب گیا تو وہ غائب بھی نہیں ہوئے تھے۔ ظفری بابا نے مجھے وہاں دیکھا تو کہنے لگے، تم ہمارے پیچھے کیوں آئے ہو؟ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا اور تمہارا پیچھا کرتے یہاں پہنچ گیا تو؟ کیونکہ ظفری بابا تو انسان تھے اور وہ سب کو نظر آ سکتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، وہاں ہنگامہ مچا ہوا ہے، آخر اب آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ ظفری بابا نے کہا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ ہی رہے گی اور میں بھی گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ تمہیں یاد ہے نا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بھی گاؤں چھوڑ دو گے۔ اب وقت آ گیا ہے، تم اپنے گھر والوں کو ساتھ لو اور گاؤں چھوڑ جاؤ۔ میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہیں، میرے گھر سے لے لینا اور ان پیسوں سے جا کر اپنی نئی زندگی شروع کرنا۔ ظفری بابا یہ کہہ کر اس لڑکی کے ساتھ جنگل کے اندھیرے میں کہیں گم ہو گئے اور میں بھاگ کر واپس آیا۔ ظفری بابا کے گھر گیا اور پیسے نکالے۔ اماں ابا سے کہا کہ فوراً سامان پیک کریں، ہمیں یہاں سے جانا ہے، زمیندار ہمیں مار دے گا۔ اماں ابا کو میں نے صرف اتنی بات بتائی۔ زمیندار کا نام سن کر تو اماں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، فٹافٹ سامان باندھا۔ رات کی بس سے ہی ہم لوگ شہر چلے آئے، یہاں ایک گھر کرائے پر لے کر رہنے لگ گئے۔ میں نے اب کھانا پکانے کا ٹھیلا یہاں پر لگا لیا تھا۔ شہر میں کام زیادہ ہوتا تھا، اس لیے اچھی کمائی ہو جاتی، میرا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، لیکن اب بھی مجھے یہ سارا واقعہ بے حد خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دن کے بعد سے آج تک کبھی بھی ظفری بابا اور اس لڑکی سے میرا ٹکراؤ نہیں ہوا، نہ ہی وہ مجھے کبھی کہیں نظر آئے تھے۔ میں نے دوبارہ کبھی گاؤں میں قدم نہیں رکھا، جانتا تھا کہ اگر میں نے گاؤں میں قدم رکھا تو زمیندار مجھے مار دے گا، کیونکہ اس رات نہ صرف اس کی بیٹی غائب ہوئی تھی بلکہ میرے خاندان کے ساتھ ساتھ ظفری بابا بھی غائب ہو گئے تھے، اور سب کا شک ہماری طرف ہی جاتا۔